اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 21 ہے، پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسا کرنا اور پنڈلیوں تک کھینچنا اور مسا کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھنا سنت ہے۔ پیٹ یعنی ان کے پوروں سے، جو اندر والا حصہ ہوتا ہے نا انگلیوں کا، 3 انگلیوں سے مسا کرنا ہے نا، تو وہ 3 انگلیوں کا جو اوپر پورا ہوتا ہے نا ناخن کے ادھر والی سائڈ، ہتھیلی والی سائڈ، تو اس کے پیٹ سے مسا کرے، ٹھیک ہے، اور پنڈلی تک کھینچ جائے، ٹھیک ہے، اور مسا کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھیں، تنگ نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں سنت ہے۔ پہلا یہ کہ انگلیوں کے پوروں سے مسا کرے، دوسرا یہ کہ وہ پنڈلی تک کھینچ جائے اس کو، تیسرا یہ کہ انگلیاں کھلی رکھے، اس طرح مسا کرنا سنت ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 22 ہے، انگلیوں کی پشت سے مسا کیا یا پنڈلی کی طرف انگلیوں کی طرف کھینچا، پنڈلیوں کی طرف جو ہے نا انگلیوں کی طرف کھینچا یا موزے کی چوڑائی کا مسا کیا اور انگلیاں ملی رکھی ہوئی یا ہتھیلی سے مسا کیا، ان سب صورتوں میں مسا تو جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ یعنی یہ کیا کہ انگلیوں کے یعنی ناخنوں سے مسا کیا، جو انگلیوں کی پشت ہے نا اوپر والی سائڈ ہے ان سے مسا کیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ پنڈلی کی طرح جو ہے نا پنڈلیوں کی طرف سے انگلیوں کی طرف کھینچا، یعنی یہ تھا نا کہ پاؤں کی انگلیوں سے کھینچ کر اوپر تک لے جائے، لیکن اس نے الٹا کیا، ایک تو ہتھیلی کے کیا الٹی سائڈ سے مسا کیا سیدھی سائڈ سے، دوسرا یہ کہ وہ پنڈلیوں سے لے کر پاؤں کے انگلیوں کی طرف گیا، تیسرا یہ کہ موزہ اس نے چوڑائی میں کیا، یعنی لمبائی میں کرنا تھا اس نے کیا کیا چوڑائی میں مسا کیا، دوسرا پھر چوتھی بات یہ آ گئی کہ اس نے انگلیاں بھی ملا کر رکھی، ٹھیک ہے، یا پھر انگلیوں سے مسا نہیں کیا، ہاتھ سے مسا کیا ہتھیلی سے، تو ان سب صورتوں میں مسا تو جائز ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 23 ہے، اگر ایک ہی انگلی سے 3 بار نئے پانی سے ہر مرتبہ تر کر کے 3 جگہ مسا کیا جب بھی ہو گیا مگر سنت ادا نہ ہوئی، اگر ایک ہی جگہ مسا ہر بار کیا یا ہر بار تر نہ کیا تو مسا نہ ہوا، یعنی 3 بار اس نے مسا کیا، ٹھیک ہے، تینوں مرتبہ کیا کیا اس نے نیا پانی لے کے نا ہر بار جو ہے نا وہ دوبارہ ہاتھ گیلا کر کے اس نے کیا کیا الگ الگ جگہوں پر مسا کیا، ٹھیک ہے، پاؤں کے 3 حصے کر لیے سب کے سارے کے، پھر یہ بھی صورت جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، مسا ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اس نے کیا کیا کہ 3 مرتبہ مسا کیا لیکن ایک ہی جگہ پر 3 بار کیا، یعنی ہر بار اس نے کیا کیا نیا پانی لیا یا ہر بار نیا تو نہیں لیا لیکن 3 بار ایک ہی جگہ پر مسا کیا، تو پھر اس طرح مسا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 24 ہے، انگلیوں کی نوک سے مسا کیا تو اگر ان میں اتنا پانی تھا کہ 3 انگلیاں برابر تک ٹپکا رہا تو مسا ہوا ورنہ نہیں، یعنی اب کیا کیا کہ ناخن اور پوروں کے درمیان والا جو نوک ہے نا اسے اس نے وہ کیا مسا کیا، لیکن شرط کیا ہے کہ اس میں اتنا پانی تھا کہ 3 انگل تک برابر ٹپکتا رہا، یعنی ان 3 انگلیوں میں جو ہے وہ برابر ٹپکتا رہا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ایک میں زیادہ دوسری میں کم تیسری میں کم، اس طرح نہیں ہو، بلکہ تینوں میں جو ہے وہ ایک جیسا پانی ٹپکتا رہا تو مسا ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 25 ہے، موزے کی نوک کے پاس کچھ جگہ خالی ہے، وہاں پاؤں کا کوئی حصہ نہیں، اس خالی جگہ کا مسا کیا تو مسا نہ ہوا، اگر بتکلف یعنی تکلیف کے ساتھ وہاں تک انگلیاں پہنچا دی اب مسا کیا تو ہو گیا، مگر جب وہاں سے پاؤں ہٹے گا تو فوراً مسا جاتا رہے گا۔ کیا کیا کہ موزے کی نوک کے پاس جو ہے نا کچھ جگہ خالی تھی لیکن پاؤں کا حصہ نہیں تھا، بعض اوقات ہوتا ہے نا بڑے ہوتے ہیں موزے، تو پاؤں جو ہے وہ پیچھے تک تھا لیکن آگے والا جو مسا تھا نا وہ کیا تھا اس میں پاؤں کا حصہ ظاہر نہیں تھا، تو اگر وہاں پہ اس نے وہاں تک مسا کیا تو مسا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے کیا کیا تکلیف کے ساتھ یعنی بتکلف اس نے کیا کیا وہاں تک انگلیاں پہنچائی، ٹھیک ہے، اور اب مسا ہو گیا یعنی اب مسا کیا تو ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی وہاں سے پاؤں ہٹے گا فوراً ہی مسا جاتا رہے گا۔ کیا کہ انہیں انگلی اندر کر کے نا کیا کیا اس نے
वहाँ جی शुरू جی से मसा किया, लेकिन जैसे ही चलने में वो जो मतलब बड़ा होता है ना, ज़ाहिर बात है अब उंगलियां ठहरती तो नहीं है, तो जैसे ही चलने में वो अगर उंगलियां जो है वो सिरक कर नीचे आ गई तो मसा नहीं हुआ। इसी तरह मसला नंबर 26 है, मसा में नियत जरूरी है, ना 3 बार करना सुन्नत है, बल्कि 1 बार कर लेना काफी है। मसला नंबर 27 है, मोजे पर पायता भी पहना, यानी मोजे पर जो है वो ऊपर एक और मोजा पहना, यानी एक पतली सी वो जाली सी बनी होती है जो मोजों की हिफाजत के लिए होती है, ठीक है, उसको पायता बाह कहते हैं, यानी ऊपर मोजे के ऊपर मोजे की हिफाजत के लिए एक जाली सी बनी होती है, वो पहन लेते हैं, ठीक है। और उस पायताबे पर मसा किया तो अगर मोजे तक तरी पहुंच गई तो मसा हो गया, वरना नहीं होगा। इसे कहते हैं जुर्मूक पहने, ठीक है। क्या कहते हैं, मोजे के ऊपर जो जाली सी पहनते हैं उसे जुर्मूक कहते हैं, सही है। तो अगर वो इतनी पतली है उस पर मसा करेंगे तो जो तरी होगी ना, जो पानी गीलापन होगा वो मोजे तक पहुंच जाएगा, तो फिर उस पर मसा जायज है, वरना नहीं जाए, वरना चाहिए कि उसे वो उतार कर वो क्या करे, मोजे पर मसा करे। नंबर 28 है, मसला नंबर 28 है, मोजे पहनकर शबनम में चला, यानी रात को जो वो गिरती है ना शबनम, इसमें चला, या इस पर पानी गिर गया, या मी की बूंदे यानी बारिश की बूंदे पड़ी जिस जगह मसा किया जाता है, बकदरे 3 उंगल के तर हो गया तो मसा हो गया और हाथ करने की हाजत नहीं है। यानी उतनी बात है कि अगर 3 उंगलियों की मिकदार जितना मसा जरूरी है ना करना, उतना हिस्सा जो है वो गीला हो गया, अगरचे उंगलियों के साथ हुआ जैसे मर्जी हुआ पाक पानी के साथ, तो फिर उसका मसा जायज है, वरना नहीं जायज। जरूरी नहीं कि उंगलियों से ही मसा किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं। मसला नंबर 29 है, अंग्रेजी बूट जूते पर मसा जायज है अगर टखने से छुपे हों, इमामा बुरका और निकाब और दस्तानों पर मसा जायज नहीं। यानी जो बड़े बड़े बूट होते हैं ना, जो ये टखनों तक पिंडलियों तक होते हैं, तो उन पर मसा जायज है, लेकिन क्या हो, अगरचे वो उन्होंने टखनों को छुपाया हुआ हो, सही है, लेकिन क्या है, इमाम शरीफ पर, बुरके पर और गाउन पर और नकाब पर और दस्तानों पर मसा जायज नहीं, ठीक है। ٹھیک ہے इतना ही काफी है। आगे इसकी छठी सूरत थी, कहते हैं नंबर 6 सूरत है जो मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मोजब में वाक़या हो, उसका मुस्तस्ना मिन्हू भी मज़कूर हो, तो इसमें दोनों सूरतें जायज है। क्या किया कि मुस्तस्ना के बाद जो है वो कलाम इल्ला जो है ना, मुस्तस्ना जो है वो इल्ला के बाद कलाम गैर मोजब में वाक़या हो, यानी जिसमें मा ला या हो ना हल इस्तिफाम वगैरह, तो अगर उसके बाद जो है वो मुस्तस्ना वाक़या हो गया इल्ला के बाद उस कलाम में, तो क्या हुआ, उसका मुस्तस्ना मिन्हू भी मज़कूर है, तो फिर उसमें दोनों सूरतें पढ़ सकते हैं, यानी जर भी पढ़ सकते हैं और मंसूब भी पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि बतौर इस्तिस्ना मंसूब होता है, यानी इस्तिस्ना के तौर पर निकाला गया है ना यहाँ पे, तो ज़ैदन मंसूब होगा, ठीक है। और दूसरी सूरत ये है कि अपने माकबल का बदल होता है, यानी देखे ना, मेरे पास नहीं आया कोई एक सिवाय जैद के, अब जैद जो है ना वो कोई एक का बदल है, ठीक है, यानी इसके बदले में ये आया, ऐसे ही है ना, मेरे पास कोई नहीं आया लेकिन इसके बदले में क्या आया, जैद आया, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये ज़ईदुन बनेगा, सॉरी ज़ईदिन नहीं आएगा, ज़ईदुन आएगा, यानी जो इराब इल्ला से पहले इसम का होता है वही इल्ला के बाद का होता है। बदल का माना क्या होता है कि जो इराब मुस्तस्ना मिन्हू का होगा वही मुस्तस्ना का होगा। समझा पाई मैं? جی جی यानी ये था कि जो मुस्तस्ना जो होता है ना, जैसे ज़ईदन है, वो क्या हुआ, इल्ला के बाद वाक़या हुआ, लेकिन कलाम मूजब में नहीं, कलाम गैर मूजब में वाक़या, ठीक है, तो उसका मुस्तस्ना मिन्हू भी मज़कूर है, तो उसमें दोनों सूरतें जायज है। पहले ये कि वो मंसूब पढ़ा जाएगा क्योंकि उसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है ना, ठीक है, और वो कलाम इल्ला में भी वाक़या है, इल्ला के बाद भी वाक़या है, और मुस्तस्ना मिन्हू भी मज़कूर है, तो इस सूरत में वो मंसूब पढ़ेंगे, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, ये देखिए हमने ऊपर यही पढ़ा था ना कि वो क्या हो, मुस्तस्ना मुत्तसिल जो है वो उसका मुस्तस्ना मिन्हू भी मज़कूर हो, तो इस सूरत में इसको क्या पढ़ेंगे, मंसूब पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे भी इसी एतबार से इसको मंसूब पढ़ेंगे, लेकिन जो आया है ना ये दूसरे ये कि अपने माकबल का बदल होने की वजह से, यानी कोई एक नहीं आया सिवाय जैद के, अब जैद जो है वो कोई एक का बदल है, यानी इसके बदले में ये आया, तो जो एराब होगा अहदुन का वही जैदुन का होगा, ठीक है, यानी मरफू होगा। इसी तरह
सातवीं सूरत है मुस्तस्ना मुफर्रग हो और कलाम गैर मुअज्जम में वाक़ हो। अब मुस्तस्ना मुफर्रग की बात हो रही है, यानी जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो और वो कलाम गैर मुअज्जम में वाक़ हो, तो इल्ला के मुस्तस्ना का इराब आमिल के मुताबिक होगा। आमिल यानी कि अमल करने वाला, जैसे माँ जानी मेरे पास नहीं आया कोई एक, इल्ला ज़ैदुन सिवाय ज़ैद के। अब माँ जानी आने वाला कौन था? कौम थी ना आने वाली, ऐसा ही है ना। जी जा जी फेल ने क्या किया, उस कौम को रफा दिया था, फाइल थी ना, ठीक है। तो फिर अब कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि मुस्तस्ना मुफर्रग हो, यानी जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो, वो क्या हो, हज़फ हो, ठीक है। वो मुस्तस्ना मुफर्रग किसमें वाक़ हो, कलाम गैर मुअज्जम में वाक़ हो, तो फिर क्या होगा कि इल्ला के मुस्तस्ना का इराब भी वही होगा जो उसके आमिल का होगा। या आमिल यानी जा फेल जिसने रफा दिया था ना फाइल को, तो अब फाइल की तरह ही इल्ला के बाद का इराब होगा, यानी वो मरफू पढ़ेंगे। इसी तरह अगर ये मफूल बन रहा हो, जैसे मार आई तू कौमा, मैंने कौम को नहीं देखा सिवाय जैद के, ठीक है। अब कौमा बन जाए, मैंने देखा है ना, मैं फाइल बन रही हूँ, किसको देखा है, कौम को। अब कौम मफूले बिही बन रही है, तो जैदन का इराब भी मफूले बिही की तरह होगा। और इसी तरह अगर कोई हो कि माँ मरर तू, मैं नहीं गुजरा इल्ला भी जैदिन सिवाय जैद के पास, ठीक है। अब यानी मैं किसी कौम के पास से नहीं गुजरा सिवाय जैद के। अब बाहर पे जा रहे ना, ठीक है, तो बाहर पे जी जार जी की वजह से ये मजरूर आएगा, ठीक है। माँ मरर तू बी कौमिन इल्ला बिजैदिन, ने बा हरफे जार की वजह से कौमिन पे जो आया था ना मजरूर, जर आई थी, तो वो जैदन पर भी वैसे ही आएगी, ठीक है। इतना ही कर लें, ये 3 सूरतें सही है। सही है। ये नीचे वाली भी कर लें। नीचे वाली आसान है, नीचे वाली कहते हैं कि अगर मुस्तस्ना लफ्ज जो है ना, वो गैरू सिवा सिवा आ हाशा के बाद वाक़या हो तो मजरूर पढ़ेंगे। अब ये लफ्ज जो है ना, गैरू हो गया, सिवा, ये सारे लफ्ज जो है ना, इनके बाद जो भी वाक़या होगा वो हमेशा मजरूर होगा। जैसे जानिल कौमु गैरा जैदिन, मेरे पास कौम नहीं है सिवाय जैद के। अब गैरा की जगह आप लगा देंगे सिवा जैदिन या सिवा आ जैदिन, हाशा जैदिन, इस तरह। समझ आई? जी जी हाँ जी, ये इतना ही पूरा कर ले, ये तीनों चारों सूत्र। आगे गर्दान सुनाई थी आपने? नहीं, वो मैंने करनी है, अभी कर रही थी अभी। चलें फिर इसकी वही गर्दानें कर लें, चारों ही। ठीक है। ठीक, सही है। जी जी इसका 14वां सबक है। कहते हैं यतलुबु, वो तलब करता है, ततलुबु तुम तलब करते हो, सॉरी, यतलुबु वो तलब करता है, उतलुब तुम तलब करो। सीनुन मुल्के चीन, महदुन झूला, लाहदुन कबर, फरीदतुन फर्ज, ये नामु वो सोता है। ये तो हो गया था ना हमारा, सच। नहीं, ये नहीं हुआ था, 13वां सबक था ये पहले मैंने दिन। आपसे थी ना, ये हदीस मुबारक है, ये देखे, तलब अल हाँ, इल्म ये हो गया था, बाकी बाकी ये हो गया था। ये सारा हो गया था तकरीबन। चले मैं इसकी उर्दू से अरबी बता देती हूँ आपको, फिर अगला सबक कर लेते हैं। बच्चा अपने झूले में सोता है, ये क्या आएगा, या नाम तिफलू फी महदी ही, बच्चा अपने झूले में जागता है। यस्तई की तिफलू फी महदी ही। और आगे है कि क्या आप पानी मांगते हैं। हल अंत ततलुबुल मा, क्या आपका दोस्त पानी मांगता है। हल सिद्दीकू का यतलुबुल मा, जी हाँ मेरा दोस्त पानी मांगता है। नाम सिद्दीकू का, सिद्दीकी यतलुबुल मा, क्या आप कलम मांगते हैं। हल अंत ततलुबुल कलमा, जी नहीं, जी नहीं मैं, बल्कि मैं कापी मांगता हूँ। ला बल अतलुबुल कुरासता। इसी तरह आगे है कि क्या आप झूले में सोते हैं, इसकी अरबी करेंगे आप। कैसे? ना, मैं, क्या आप झूले में सोते हैं। झूले का वो मानी थोड़ा सा जहन में नहीं आ रहा, बाकी तो आ रहा है। अल महदुन झूला है ना। हाँ हाँ, अल बहादुर झूला। सोने की अरबी क्या है। सोने की अरबी। या नाम है ना।
हल तनामु फी महदी, क्या आप झूले में सोते हैं? जी नहीं, बल्कि मैं चटाई पर सोता हूँ। ला बल अनामु अलल हसीरी। सही है। आगे सबक है हमारा 15वां सबक है, ये वाला बस और टिकट वाला सबक है कि बासुन बस, तज़किरातुन टिकट, यंज़िलु वो उतरता है, यरकबु वो सवार होता है, शारियुन सड़क, यसीर वो चलता है, याखुज़ वो लेता है, खुज़ लो, सुम्मा फिर, बगैरिन बगैर, अन से यानी हाजा बासुन ये क्या है, बस है, हाज़िही तज़किरातुन ये टिकट है, अरकबु फिल बासी मैं बस में सफर करता हूँ, मैं बस से उतरता हूँ, जैद बस में सवार होता है, तो जैद टिकट लेता है, और बस जो है वो सड़क पर चलती है। तुम बस पर सवार नहीं होते बगैर टिकट के, तुम बस पर सवार नहीं हो सकते बगैर टिकट के। टिकट लो फिर बस पर सवार हो, फिर बस पर सवार हो, बस से उतरो। क्या तुम्हारा दोस्त बस पर सवार होता है? क्या? जी हाँ, मेरा दोस्त बस पर सवार होता है। फिर यह है कि हुआ, अब ये चढ़ रहा है ना, कि हुआ यरकबु फिल बासी, वो बस में सफर करता है। अना अनजिलु अलल बासी, में बस से उतरता हूँ। अनिल बासियाना है। क्या आप टिकट लेते हैं? क्या जैद टिकट लेता है? टिकट लो, बस से उतरो, बस पर सवार हो। क्या तुम्हारा दोस्त बस पर सवार होता है? क्या खालिद टिकट लेता है? बस कहाँ चलती है? क्या बस सड़क पर चलती है? क्या सड़क पर चलती है? हल तसीर वाल शारी, क्या तुम जो है वो, क्या तुम सड़क पर चलते हो? हल तसीर वाल शारी, क्या तुम सड़क पर चलते हो? क्या तुम बस से उतरते हो? मैं बस से उतरता हूँ, तुम बस पर सवार हो। आगे टिकट लो, खुजी तज़किराता, बस में सवार हो। इरकब फिल बासी, बस से उतरो। अनजिल अनिल बासी, जी हाँ, मेरा दोस्त बस में सवार, क्या तुम्हारा दोस्त बस में सवार होता है? हल सिद्दीकु का यरकबु फिल बासी, जी हाँ, मेरा दोस्त बस पर सवार होता है। नाम सिद्दीकी यरकबु फिल बासी, क्या सड़क पर चलती है? हल यसीरुल बास वाला शारी, जी हाँ, बस सड़क पर चलती है। फिर इसकी जगह है नाम यसीरुल बास वाला शारी, क्या तुम टिकट लेते हो? हल अंता ताखुज़ु तज़किरता, जी हाँ, मैं टिकट लेता हूँ। नाम अना आखुज़ु तज़किरता। सही है। सही है। और कोई